हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून मैम। ओके, सुनाई दे रहा है प्रॉपरली? आवाज सही है? ओके, आवाज अटक रही है मैम। क्या हुआ बच्चे? मुझे भी थोड़ा सा आपका आवाज थोड़ा सा मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज थोड़ी अटक रही है आपकी। सुनाई नहीं दे रही है? मैम साफ नहीं आ रही। साफ नहीं आ रही। दिखा रहे? हाँ बच्चे, सुनाई दे रहे अभी? नो मैम। हाँ हाँ, अभी थोड़ा सा बेटर लगा। ओके, तो कैसे हो बच्चे सब? अच्छे हो? बढ़िया। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं? हेलो, हाँ बच्चे अभी सुनाई दे रहे हैं? हाँ बच्चे सुनाई दे रहे हैं अभी? यस मैम। यस मैम। अभी ठीक है? ओके, थोड़ा सा इसमें ईयरफोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। ओके, सो लेट अस सी दिस थिंग। सो अभी पढ़ाई स्टार्ट करें? ओके, सो सबका हेल्थ ठीक है? ऑल आर इन गुड कंडीशन? ओके, मैं सबका हेल्थ सही मान के स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, सब आफ्टर द क्लास विल डिस्कस। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट विथ द कंटिन्यूटी इक्वेशन. So till now we are discussing the topic of electromagnetic theory. आपका प्रीवियस नोट्स आपके साथ तो होगा, तो आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए एंड आप जो जो चीज में बोल रही, जो जो इक्वेशंस आएंगे यू हैव टू राइट दोस थिंग्स. ठीक है? सो लास्ट क्लास वी डिस्कस द गॉस लॉ. गॉस लॉ के बाद वी डिस्कस सम क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द टॉपिक एंड नाउ विल डिस्कस द कंटिन्यूटी इक्वेशन. ठीक है? सो व्हाट डू मीन बाय दिस कंटिन्यूटी इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? Okay, what this equation continuity equation is an equation which expresses the equality of incoming and outgoing charges in a system and follows the law of conservation charge is known as an equation of continuity. So actually ये क्या कहता है? Conservation of charge. So what do you mean by this charge conservation? Charge conservation मतलब total amount of charge in an isolated system is always remaining constant. ठीक है? So चार्ज भी जितना होता है वो इतना नंबर कांस्टेंट होता है. अगर हम कोई आइसोलेटेड सिस्टम अगर देखेंगे देन चार्ज अपने आप डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगा, चार्ज अपने आप इंक्रीज नहीं हो सकता. ठीक है? सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज योर चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. सपोज we are saying, let us consider any volume V and the volume V is bounded by any surface S. Let us consider V is any volume and the surface bounding that volume is S. S is the surface bounding the volume. So let us consider some charges enclosed there. अगर हम बताएंगे किसी भी वॉल्यूम के अंदर some amount of charge is there and we are saying that number of charge is increasing, मतलब क्या है? Charge is flowing inside the volume. Charge is flowing inside the volume. Suppose you are saying in any volume total number of charge जितना भी था that number is decreasing. Decreasing मतलब charge is flowing out of the volume. And when we are saying charge is flowing out मतलब so charge is flowing per
time. So rate of flow of charge constitutes your current. So अगर charge number of charge amount is decreasing मतलब current is flowing out. Charge amount increasing मतलब current is flowing in. We can is of this concept we will understand this equation of continuity. Okay. So इसके लिए we have to consider two quantities. सबसे पहले you have to consider the current density J and the volume charge density rho. Okay. So the volume charge density J, volume charge density rho and the current density J is related by this equation of continuity. ठीक है? तो कुछ समझ में आ रहा है बच्चे? Okay. So जो बच्चे आज पहले भी आए हो उनको ये चीज टॉपिक समझ में आ जाएगी, खाली डेल का यूज आपको समझना है. ठीक है? एक चीज क्वांटिटी जो हमने न्यू ऑपरेटर डेल डिफाइन किया है, यू हैव टू ओनली अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट, अदरवाइज ये चीज समझ में आ जाएगी. ठीक है? तो लेट अस सी दिस थिंग, दैट इज व्हाट इज दिस करंट डेंसिटी J एंड चार्ज डेंसिटी rho, हाउ दे आर रिलेटेड विद ईच अदर. स्क्रीन तो सबको दिख रहा है बच्चे? So the current density J and charge density rho related to each other at any point through a differential equation. And ये किस concept के ऊपर based है? That is it based on charge conservation, that charge can neither be created nor be destroyed, and the rate of increase of the total charge inside any volume must be equal to the net flow of charge into this volume. ठीक है? That is, अगर हम किसी भी वॉल्यूम में सपोज वी आर सेइंग इफ द नंबर ऑफ चार्जेस इज इंक्रीजिंग मतलब देन क्या होगा? इंक्रीजिंग मतलब करंट इज फ्लोइंग इनसाइड. अगर नंबर ऑफ चार्जेस डिक्रीजिंग मतलब देयर इज करंट इज फ्लोइंग आउट. कोई भी चीज हम किसी भी फॉर्म में कह सकते हैं. ठीक है? नाउ यू नो दैट द इलेक्ट्रिक करंट एंड करंट डेंसिटी का रिलेशन आपको पता है? हाँ बच्चे, करंट डेंसिटी J एंड करंट का रिलेशन तो सबको पता है. करंट डेंसिटी क्या होता है? दैट इज करंट फ्लोइंग बाय एरिया. एरिया को हमने अगर S ले लिया सरफेस, सो J इक्वल्स टू I बाई S, और यू कैन से I इक्वल्स टू ZS एंड इंटीग्रल फॉर्म में इसको लिख सकते हैं J डॉट ds. अब बच्चे बोलो कुछ समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ? अभी आएगा इस इक्वेशन के फॉर्म में, इसका बिफोर थिंग जो है वो समझ में आया? हाँ बच्चे बोलो. Yes, ma'am. आ रहा है? हाँ, अभी कॉपी पेन निकालो एंड जहाँ पे लिखे उसके बाद हेडिंग देके इसको लिखना स्टार्ट करो. ठीक है? छोटा सा ही, दो ही छोटे छोटे रिलेशन से इक्वेशन फटाफट आ जाएगा. उससे पहले खाली आपको ये जो बेसिक चीज उसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है. ओके, सो नोट डाउन दिस. That is the electric current through any closed surfaces can be written as I equals to J dot ds. लिख सकते हैं? ओके, ये इक्वेशन लिखो. I equals to current density I equals to J dot ds. I think ये सबको समझ में आया होगा. I equals to integration of J dot ds. ऐसे लिख सकते हैं? अगर हम स्मॉल सरफेस एलिमेंट के फॉर्म में लिखेंगे करके J dot ds हम इसको लिख सकते हैं. ठीक है? एंड इसको हम और क्या लिख सकते हैं? J डॉट ds को हम इसको क्या कर सकते हैं? सॉरी, इसमें एक छोटा सा चेंज है. हम यहाँ पे सरफेस को अगर वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे ये v आएगा. मैंने भी यहाँ पे s लिख लिया, सो यू हैव टू राइट दिस एज v. अगर हम सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे देन क्या लिख सकते हैं? J ds को यू कैन राइट J डॉट d ds. दैट इज सरफेस को हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. ठीक है? कर सकते हैं. J ds को हम क्या लिख सकते हैं? डेल डॉट J dv. दिस इज नॉट s. ये जो है दिस इज योर v. ds नहीं है, इसको v लिखोगे. इस s को, दिस इज नॉट s, इसको आप लिखोगे क्या? यू हैव टू राइट दिस एज v. ठीक है? इसको आप लिख लो
You can write this as V. This is del dot J dV. यहाँ पे लिखो using Gauss divergence theorem we are converting the surface integral to the volume integral. So we can write J dot ds equals to del dot J dV. We can write J dot ds equals to del dot J dV. ठीक है? हाँ बच्चे लिखा फर्स्ट इक्वेशन 1 जो यहाँ पे लिखा है इक्वेशन 1 क्या है समझ में आया? आया बच्चे? Yes, ma'am. आया? ओके सो लेट अस सी दिस थिंग. ये तो हमने करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिख लिया है. सपोज लेट अस कंसीडर दैट सपोज द चार्ज लिविंग इन ए वॉल्यूम v पर सेकंड. ठीक है, किसी वॉल्यूम से चार्ज इज फ्लोइंग आउट पर सेकंड. ठीक है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द चार्ज फ्रॉम दैट वॉल्यूम. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम बताएंगे किसी भी वॉल्यूम से चार्ज निकल के जा रहा है, दैट इज द चार्ज इज लीविंग द वॉल्यूम. सो व्हाट इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द चार्ज? रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द चार्ज मतलब दैट इज द करंट इज फ्लोइंग आउट. एंड करंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dq by dt. एंड यहाँ पे सिंस वी आर राइटिंग द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द चार्ज हम इसको क्या लिख सकते हैं? I equals to minus dq by dt. ओके, इसको क्या लिखा? I equals to minus dq by dt that equals to minus d by dt of integration of rho dv. ये क्या लिखा समझ में आ रहा है? हाँ बच्चे बोलो. नहीं है तो बताओ. किसी को नहीं आ रहा है? बोलो. किसी को नहीं आ रहा है तो बताओ. अरे ओके. Yes, ma'am. So then note down this. Rate of decrease of the charge I equals to minus dq by dt that equals to minus d by dt of q. को हम क्या लिख सकते हैं? q is the total charge inside the volume v and rho is the volume charge density. So हम वॉल्यूम को क्या लिख, चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज बाई वॉल्यूम. इसको हम लिख सकते हैं dq by dv. So हम q को क्या लिख सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, we can write that integration of rho dv that equals to minus del rho by del t into dv. इसके फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, माइनस del rho by del t dv ऐसे लिख सकते हैं. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 समझ में आया बच्चे? हाँ बच्चे आया समझ में? इक्वेशन 2 समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, देन 1 एंड 2 में क्या है? RH LHS में दोनों साइड में क्या है? इसको भी हमने करंट को पहले रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी. अभी करंट को हमने रिप्रेजेंट किया चार्ज, देन चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में. अभी इन दोनों इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर इक्वेट करेंगे देन हमारे पास क्या है? यहाँ पे डेल डॉट जेड डीवी. यहाँ पे इसको v करना, दिस इज योर dv. एंड यहाँ पे क्या है? डेल डो बाय डेल टी इक्वल्स dv. क्योंकि हम दोनों सेम ही वॉल्यूम के अंदर देख रहे हैं, देन वी कैन राइट दैट del dot j plus del dot by del t into dv equals to 0. and or we can say for any arbitrary volume integrand को ये हम 0 कर सकते हैं, that is del dot j plus del dot by del t equals to 0. and this is the equation of continuity. so इसके लिए पहले आपको equation 1 and 2 को समझना पड़ेगा. equation 1 and 2 आया, दोनों को इक्वेट करोगे then you can write del dot j plus del dot by del t equals 0. this is the equation of continuity. ठीक है, समझ में आया? हाँ बच्चे समझ में आ रहा है? कबीर समझ में आ रहा है कुछ? कबीर यस, कबीर एंड शिव समझ में आ रहा है कुछ?
यस सोनिका, समझ में कुछ आ रहा है? और प्रियांश समझ में आ रहा है? प्रियांश भरद्वाज आ रहा है? ओके, लिख लिया सबने टिल इक्वेशन 3? ओके, तो चले आगे। आस्था, Yes, ma'am. हाँ बेटा, आज तो आपको समझ में ज्यादा नहीं आएगा। एंड अभी कैसे हो? आर यू ओके? ओके, चलो आप पहले आज ऐसे लिखो, बाकी आपका जो टॉपिक जैसा है उसको आप बाद में, हम जो बच्चों का नहीं हो पाया आपको बाद में प्रैक्टिकल जिस दिन होता है उस दिन लास्ट पीरियड में आपको समझा देंगे, ठीक है? ओके, अभी लेट अस नोट डाउन दिस थिंग। इक्वेशन 3 तक सबने लिख लिया, दैट इज डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट बाय डेल टी इक्वल्स टू 0। ओके, अभी यहाँ पे इसके बाद देखो, ये इक्वेशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझना और इसका फॉर्म याद रखना भी आपको जरूरी है, क्योंकि आगे हम इसको एम्पियर्स लॉ में यूज करेंगे, ठीक है? नाउ लेट अस सी, सपोज वी आर सेइंग, यहाँ पे तो हमने बता दिया किसी वॉल्यूम से चार्ज इज डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, देन क्या होता है वो कंडीशन बता दिया। अगर हम किसी स्टेडी स्टेट कंडीशन लेंगे, दैट इज अगर हम स्टडी करंट जहां पे हम बताएंगे दैट इज नो चेंज इन चार्ज डेंसिटी, कहीं पे इसको हम बिल्कुल स्टडी स्टेट कंडीशन कंसीडर करेंगे, दैट इज जो वॉल्यूम ऑफ चार्ज डेंसिटी रो जो आपका कांस्टेंट है, रो इज कांस्टेंट, देन डेल डॉट बाय डेल टी लिखो। यहाँ पे खाली एक ही टर्म लिखो, फॉर स्टेडी स्टेट दैट इज व्हेन रो इक्वल्स टू कांस्टेंट, हम क्या दिखा सकते हैं? डेल डॉट बाय डेल टी इक्वल्स टू 0, डेल डॉट बाय डेल टी इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पे हम रो कांस्टेंट ले लेंगे, इन दिस लिखो इन इक्वेशन 3, if you take rho equals to constant for steady state, rho equals to constant, so del dot by del t क्या होगा? del dot by del t equals to 0. so del dot by del t अगर 0 है then del dot j कितना होगा? that equals to del dot j equals to 0. okay, इसको क्या कहा जाता है? equation 4 is known as the equation of continuity for steady state. this equation is known as equation of continuity for steady state. ठीक है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर स्टेडी स्टेट, ये समझ में आया बच्चे? स्टेडी स्टेट इक्वेशन क्या है? हाँ कार्तिक, कार्तिक आए हो आज बेटा क्लास में? यस मैम। ओके बेटा, चलो चलो थोड़ा सा इस चीज को देखो, अभी तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? आप सबको मैं बाद में बता दूंगी, अभी थोड़ा सा खाली क्लास में थोड़ा सा बैठने की आदत रखो बच्चे, ठीक है? और तो कुछ नहीं कह सकते अभी। ओके, सो नाउ लेट अस सी दिस थिंग। ये सबको पता है, ये सब आप मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज दिस थिंग? बोलो। नाउ लेट अस डिस्कस द एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है? एम्पियर सर्किटल लॉ, ये नाम सुना है बच्चे? पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सबने लिख लिया, समझ गए? ओके, अभी इस बेसिस पे ही आगे चलेंगे, ठीक है? खाली जो बच्चे न्यू है उनको डेल यूज नहीं आएगा आज पे, न्यू मतलब आज फर्स्ट डे आए हो, डेल आपको समझ में नहीं आएगा, अभी डेल छोड़ के बाकी चीज आपको समझना है। सो डेल इज ए वेक्टर ऑपरेटर जिसको हम यूज करके ऑल द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को यू हैव टू अगेन राइट इन ए न्यू फॉर्म, ठीक है? अकॉर्डिंगली इसको हम फिजिकली एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेल, ठीक है? अभी देखो व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है बताओ? ये सबको पता है? ये लॉ पता है नहीं पता? एम्पियर सर्किटल लॉ, हाँ बच्चे बोलो, पता है नहीं पता?
ये जाना पहचाना फॉर्म है या न्यू फॉर्म है? सबको पता है एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है? दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along any closed loop C is proportional to the current I. Okay, suppose we are saying we have to find the value of the magnetic field on any line element, then हम उसको क्या लिख सकते हैं? That is integration of B dot dl. Integration of B dot dl equals to mu naught I. What is mu naught? It is the permittivity of the free space. Okay, and एक रिलेशन आप सबको याद रखना है, दैट इज B इक्वल्स टू म्यू H. B क्या है, H क्या है, बोलो? B क्या है, म्यू क्या है, H क्या है? B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम कभी B यूज करते हैं, कभी H यूज करते हैं. एंड B एंड H में रिलेशन क्या है? बहुत बार यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जो अभी आगे पढ़ेंगे ज्यादातर H का ही काम आएगा. B के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, मैक्सिमम चीज अभी आगे हम H के फॉर्म में ही लिखेंगे. सो हमें फटाफट जहाँ पे B है उसको H में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू यूज दिस B इक्वल्स टू म्यू H. B इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंटेंसिटी वेक्टर एंड इसको H को क्या कहते हैं? दैट इज द H को क्या कहते हैं बच्चे, बोलो? अरे बच्चे कुछ तो बोलो. हाँ बच्चे बोलो. आप सब सुन रहे हो ना, सारे सो रहे हो? बच्चे तो हो इतने सारे, कुछ तो बोलो. हाँ okay, chalo let us see. B dot dl equals to mu naught I, or we can write this is H dot dl equals to I. ठीक है? So is what is this equation? Equation 1. Equation 1 is the both ऊपर और नीचे वाला equation, both the equations are known as the integral form of the Ampere's law. इसको क्या कहा जाता है? This is known as the integral form of the Ampere's law. ठीक है? अब इसको भी वही फॉर्म चेंज करके डिफरेंशियल फॉर्म में डेल यूज करके न्यू फॉर्म में लाएंगे. ओके, अभी लिखो इक्वेशन 1 लिख लिया. उसके बाद लिखो अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन. देन क्या हो जाएगी? यहाँ पे क्या करेंगे देखो, ब्रॉडली आपको ऐसे समझना है, जो मैं समझाऊंगा उससे पहले बता दे दूं. यहाँ पे क्या है? L है, DL लेंथ एलिमेंट, यहाँ पे I को हम क्या लिख सकते हैं? इसको भी इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा J डॉट ds. अभी भी पढ़ा था करंट क्या होता है, J डॉट ds. तो यहाँ पे लाइन एलिमेंट है, यहाँ पे सरफेस एलिमेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे लाइन है तो लाइन को हमें सरफेस में करना पड़ेगा, क्योंकि सरफेस वॉल्यूम में हो सकता है, सरफेस लाइन में हो सकता है. यहाँ पे वॉल्यूम करने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये साइड में हमारी लाइन है. जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जब हम डेल यूज करते हैं, हमें इंटीग्रेशन में देखना पड़ेगा कि बोथ इंटीग्रेशन दोनों साइड का जो इंटीग्रेंड के अंदर जो भी है, हम इसको वॉल्यूम में करते हैं तो इसको वॉल्यूम में करना पड़ेगा. एक में सरफेस है तो दोनों को सरफेस में करना पड़ेगा. सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे DL है, यहाँ पे DS है. सो S को एंड L को हमें सेम फॉर्म में लाना पड़ेगा. सो इसको कैसे कर सकते हैं? अभी देखो, दिस इज H डॉट DL. यहाँ पे लिखो अप्लाइंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, वी कैन राइट H dot dl equals to del cross H ds. ओके, सो ये जो लिखा है लाइन सही लिखा है या गलत लिखा है, बोलो? कैन एनीवन टेल मी? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो लिखा है सही लिखा है या गलत लिखा है? अरे बोलो कुछ. अरे बच्चे कुछ तो बोलो. हाँ आशिमा बोलो. आशिमा
हाँ सीमा बोलो, हाँ आदित्य बोलो। हम लाइन को जो सरफेस में कन्वर्ट करते हैं दैट इज नोन एज स्टोक्स थ्योरम, नॉट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अप्लाइंग स्टोक्स थ्योरम नॉट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। लाइन एलिमेंट इज बीन कन्वर्टेड इनटू सरफेस एलिमेंट, देन दैट थ्योरम इज नोन एज योर स्टोक्स थ्योरम। तो यहाँ पे दिस इज नॉट करेक्ट, आपको क्या लिखना पड़ेगा, अप्लाइंग स्टोक्स थ्योरम टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन। क्या आएगा इधर, h डॉट dl इक्वल्स टू डेल क्रॉस h ds एंड दैट इक्वल्स टू i। एंड i क्या है, अगर खाली i को हम लिखेंगे वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन j डॉट ds। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्रॉस h ds इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ j डॉट ds, क्योंकि hdl को क्या हम लिखेंगे, डेल क्रॉस h ds, i को क्या लिखेंगे, j डॉट ds। सो LHS को हमने लिखा डेल क्रॉस h इंटू ds एंड i को क्या लिखा, दैट इक्वल्स टू j डॉट ds, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ds आ गया, यहाँ पे भी ds आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट डेल क्रॉस h इक्वल्स टू j, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, we can write del cross h equals to j and this equation is known as the differential form of Ampere's law. This equation को क्या कहा जाता है, this equation is known as differential form of Ampere's law, ठीक है। एम्पियर्स लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म देखा कैसे आया, क्या हुआ, समझ में आया। एक स्टेप है, डेल जिसको आता है देन आप फटाफट इसको कर सकते हो, डेल क्रॉस h इक्वल्स टू j, ओके। चले भी आगे, ओके। एक्चुअली एम्पियर्स लॉ जो है दैट इज नॉट ट्रू इन ऑल केसेस, ठीक है। यही चीज को अभी आगे देखेंगे कि ये अनट्रू कैसे हुआ, कैसे ये अनट्रू हुआ, लेट अस चेक दैट थिंग। क्योंकि यहाँ पे फिर मैक्सवेल मॉडिफाइड दिस एम्पियर्स लॉ बिकॉज ऑफ दिस रीजन। सो क्या रीजन है, क्यों ये मॉडिफाई हुआ, क्यों, या इसका डिमेरिट क्या है, लेट अस सी दैट थिंग। मैथमेटिकल पहले देखेंगे देन फिजिकल इसको समझेंगे, ठीक है। अभी ये देखो इक्वेशन 4 क्या दिखा रहा है, डेल क्रॉस h इक्वल्स टू j, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखो, मैंने आपको कुछ कुछ आइडेंटिटी बताया था उस दिन कि कुछ कुछ आइडेंटिटी है, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर, इट इज आल्सो वन ऑफ द आइडेंटिटी। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। कोई भी वेक्टर लो, उसका पहले कर्ल निकालो, फिर उस वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालो, देन आपको 0 आएगी, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, लेट अस टेक इक्वेशन 4, उसका दोनों साइड में लिखो टेकिंग डाइवर्जेंस ऑफ इक्वेशन 4। अगर दोनों साइड से इक्वेशन 4 का डाइवर्जेंस लेंगे देन क्या आ जाएगी, दिस इज डेल डॉट डेल क्रॉस h इक्वल्स टू डेल डॉट j, ठीक है। लिख सकते हैं यहाँ पे भी इन दिस इक्वेशन, यहाँ पे डेल ऑपरेट करा दिया, यहाँ पे भी डेल ऑपरेट करा दिया, दोनों साइड में LHS एंड RHS में अगर डेल डॉट ले लिया, दैट इज डाइवर्जेंस ले लिया फ्रॉम बोथ द साइड्स, देन क्या आएगा, डेल डॉट डेल क्रॉस h इक्वल्स टू डेल डॉट j दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। Divergence of curl of any vector is always equals to 0. So LHS क्या हो जाएगी, this is your LHS will be equals to 0 and यहाँ पे del dot j equals to 0. Since this equals to 0, so ये क्या दिखाया, del dot j equals to 0, ठीक है। इक्वेशन 5 तक समझ में आया, हाँ बच्चे समझ में आया।
अभी देखो, अभी हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा था। अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे कंपेयरिंग विद द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, देन ये किसके साथ कंफर्टेबल है? सो दिस इज नॉट compatible with the general equation of continuity. This is true only for equation of continuity for steady state. ठीक है, this equation 5 is satisfying equation of continuity for steady state only. जनरल इक्वेशन में क्या था? जनरल इक्वेशन जो इसमें लिखा था, देखो क्या था, del dot j plus del dot by del t equals to 0, which is the equation of continuity in general. Steady state में क्या है? Del dot j equals to 0. So now we take this Ampere's law. Now we are taking divergence from both the sides. Then हमें क्या मिला? We are getting this thing, that is del dot j equals to 0. ठीक है, इक्वेशन 5 जो यहाँ पे दिखा रहा है, so this is इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के साथ कंपेयर करेंगे. सो दिस इज द स्टेडी स्टेट इक्वेशन. सो इफ एनी सर्किट, दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ. सो एनी सर्किट व्हिच कंटेन्स any type of time varying component in a circuit, then equation of Ampere's law is not true. Okay, Ampere's law वहाँ पे true नहीं होगा. So this is true only for circuit containing non-time varying component. जहाँ पे time varying component like capacitor is present, in that case equation of Ampere's circuital law is not true. ये यहाँ पे बताया गया. So after doing this operation, we can see that Ampere's law is valid only for steady state condition. It is not valid, it is not true for time varying components. ठीक है, it is circuital law, सारे सर्किट के लिए ट्रू होगा, पर जहाँ पे टाइम वेरिंग कंपोनेंट आ जाएगी, देन दिस लॉ इज नॉट ट्रू. ठीक है, स्टेडी स्टेट के लिए सही है. So Ampere's circuital law is valid only for steady states. When any circuit which contains time varying electric field components, then Ampere's law is not valid. Hence Maxwell modified Ampere's law and add one term for the time varying electric fields. Then क्या किया गया? Ampere's law बहुत सारे केस में ट्रू हो रहा है, पर फिर भी कुछ कुछ केस में ये ट्रू नहीं हो रहा है. So Maxwell's ने क्या कहा? That is Ampere's law is missing something. So if we add some extra term to this Ampere's law, then this law will again true. So then Maxwell modified this Ampere's law and add one extra term for this time varying electric field. ठीक है, and उस time varying electric field में जो add किया, then कैसे उसको किया? यहाँ पे ये लिखा, that is del cross H equals जो J था, instead of J उसको क्या लिखा? This consists of another term. Something is missing in Ampere's law. According to Maxwell, something is missing in Ampere's law, so that it is not compatible with the time varying component in any circuit. It is only true for steady states. तो अगर steady state ना होके और कोई time varying component आएगा, मतलब current का और कोई factor should be there. So this was the concept given by Maxwell. Accordingly, he added one extra term to this Ampere's law. So according to Maxwell, del cross H equals to J plus JD. ये एक्स्ट्रा टर्म इन्होंने जो ऐड किया है, दैट एक्स्ट्रा टर्म वाज नेम्ड एज JD. JD इज द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी. डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट यहीं से इंट्रोड्यूस किया गया है, J प्लस JD. ओके, नाउ देखो, सो दिस इज इक्वेशन 6. अभी यहाँ पे क्या बोला? टेकिंग डाइवर्जेंस फ्रॉम बोथ द साइड्स. इस इक्वेशन का अगर हम डाइवर्जेंस लेंगे फ्रॉम बोथ द साइड्स, देन क्या आ जाएगी? डेल डॉट डेल क्रॉस H इक्वल्स टू डेल डॉट J प्लस डेल डॉट JD. यहाँ पे भी आपने डेल ऑपरेट किया LHS में, RHS में यहाँ पे डेल डॉट J प्लस यहाँ पे भी आ गया डेल डॉट JD. ठीक है, लिखो इसको. डेल टेकिंग डाइवर्जेंस फ्रॉम बोथ द साइड्स क्या होगा? डेल डॉट ऑफ डेल क्रॉस H इक्वल्स टू डेल डॉट J प्लस डेल डॉट JD. That implies divergence curl of any vector equals to 0. That equals to del dot J plus del dot JD. ठीक है, so now we are getting two terms in this equation. So del dot J plus del dot JD equals to 0. This is equation number 7. Now we are comparing this equation with the equation of continuity. Okay, general equation of continuity क्या है? Del dot J plus del dot by del T equals to 0.
स्टेडी स्टेट के लिए खाली क्या आता था, रो कांस्टेंट है, डेल डॉट बाय डेल टी 0 है, सो डेल डॉट जे इक्वल्स टू 0. नाउ कंपेयरिंग दिस विद दिस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन 7 हमारी क्या आया था, डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे डी इक्वल्स टू 0. अभी इक्वेशन 8 जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का जनरल फॉर्म हमने लिखा, डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट बाय डेल टी इक्वल्स टू 0. अभी इफ यू कंपेयर इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8, लिखो कंपेयरिंग इक्वेशन 7 एंड 8 क्या आएगा, बोलो क्या आएगा. यहाँ पे डेल डॉट जे है, यहाँ पे डेल डॉट जे है, यहाँ पे डेल डॉट जे डी, यहाँ पे डेल डॉट बाय डेल टी. सो वी कैन राइट डेल डॉट जे डी इक्वल्स टू डेल डॉट बाय डेल टी. लिख सकते हैं? हाँ बच्चे बोलो, लिख सकते हैं? यस मैम. हाँ. अभी क्या करेंगे, इसका थोड़ा फॉर्म चेंज करेंगे. अभी देखो ये लिख लिया डेल डॉट जे डी इक्वल्स टू डेल डॉट बाय डेल टी. अभी डेल बाय डेल टी ऑफ, यहाँ पे डेल को बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या आया, डेल डी बाय डेल टी. क्यों किया, अभी देखो हमें जे डी एक एक्स्ट्रा टर्म हमने ऐड किया है, अभी उसके लिए एक एक्सप्रेशन अभी निकालना है. ठीक है. सो डेल डॉट जे डी इक्वल्स टू डेल डॉट डेल डी बाय डेल टी. दोनों साइड से अगर डेल को हटा देते हैं देन क्या आएगा, जे डी इक्वल्स टू डेल डी अपॉन डेल टी. ये बताओ रो इक्वल्स टू डेल डॉट डी कहाँ से पुट किया, ये पुट किया हमने डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ. गॉस लॉ हमने लिखा था क्या, डेल डॉट ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वी कैन राइट डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो. डी क्या है, व्हाट इज डी, कैपिटल डी इज द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई. ठीक है, डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई. सो रो का वैल्यू हम यहाँ पे पुट किया डेल डॉट डी. ओके, सो जे डी इक्वल्स टू डेल डी बाई डेल टी. सो एम्पियर्स लॉ मॉडिफाइड फॉर्म में क्या लिखा था, डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस जे डी. जे डी का वैल्यू कितना आया, डेल डी बाई डेल टी. सो दिस इज डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी. सो दिस इज योर मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ. ठीक है. ओके बच्चे, मुझे कोई स्क्रीनशॉट भेज देना एंड अनदर थिंग इसके बाद ज्वाइन कर लेना. ठीक है, टाइम बहुत कम है, 1 मिनट से कम है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा. ऑल ऑफ यू फिर ज्वाइन. एंड किसका क्या क्या डिस्कस करना है हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है.